Namaste, all the viewers, specifically the PG PhD scholars. Today I am going to address the series Rule the Regulation, and under this series we are discussing. Uh, we have discussed from Rule 151 to Rule 155, and the process of the renewal is open. And I request you to please open your book. Yes, please open your book. If you will not open your book, there will be problem in the understanding what we are discussing. I always request you that whenever you are listening this program, rule the regulations on every Monday by 6 p.m. Then sit with me and open your book, and the same line you should must repeat and try to understand. It is not that the 6 p.m. Whenever you are going through this, please go through the books. So in our schedule today term is the rule 156, and this is about the duration of the license. We have studied in which form you will just take the application, and how the license will be issued to you, and then there is GMP and the license and the loan license and all these things. So let us discuss the duration of the license. That is the rule 156. A license issued in the form 25D shall remain valid perpetually. And if you see the meaning of the word perpetually, it clearly means anant kal tak. So once you have issued the license, means that is the final. And if it is final, means there is a need of, there will be no surprise inspection. It may be surprise inspection, maybe, but every time the 3-year, 5-year renewal and the process from all these you are exempted. And as I said, this notification of the amendment 2021, it is very much industry friendly, and so it is very much palpable, and it was welcomed by the industry because Dr. J.L.N. Sastry, who was in the charge of the DCC of the Ministry of Ayush, did this good job for the industry. Anyhow, so after that, if you will go through this, the provided that the licensee shall submit a self-declaration of adherence to the condition of license and the provisions of the Drug and Cosmetic Act and the rules thereunder every year from the date of issue of license in Form 25D or from the date of submission of last self-declaration as the case may be. Very clear. आपको एक बार लाइसेंस मिल गया आपकी कंपनी के लिए. अब जिस दिन से वो लाइसेंस आपको इशू हुआ है, या जो पिछले आपने किसी भी कारण से अगर देर की है सेल्फ डिक्लेरेशन देने में, तो उस सेल्फ डिक्लेरेशन देने के 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद, आइदर द डेट ऑफ इशू ऑफ द लाइसेंस और द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द सेल्फ डिक्लेरेशन, ईच ईयर यू हैव टू सबमिट बिफोर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी दैट सेल्फ डिक्लेरेशन. और वो क्या कि विश्वास पर दुनिया चलती है, आपको ये लिख करके सिर्फ देना है SLA को, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, कि आपकी कंपनी में, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो सारे प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं जिनके आधार पर आपको लाइसेंस दिया गया था. आप एक शपथ पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन देते रहेंगे और आपका लाइसेंस कंटिन्यू रहेगा. इसके पहले ऐसा नहीं था. इसके पहले आपको जो ड्यूरेशन होती थी उस पर पूरा रिन्यूअल होता था, रिन्यूअल के टाइम पर पूरा इंस्पेक्शन होता था, फिर सेम सारी प्रोसीजर होती थी जो कि लाइसेंस के लिए होती थी, तब आपको रिन्यूअल होता था. लेकिन अब यहाँ पर ये इतना ईजी है कि सरकार आपके ऊपर विश्वास कर रही है, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है. और सरकार जब आपके ऊपर विश्वास कर रही है तो सिर्फ ये कह रही है कि आप ये लिख करके दीजिए कि जिन टर्म कंडीशंस पर आपको लाइसेंस आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने का दिया गया था, वो टर्म कंडीशन आज भी जारी है और आपकी कंपनी उसको फॉलो कर रही है. इसलिए यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, और आपका लाइसेंस रिन्यू हो चलना चाहिए. अगला आता है
He provided further that such self-declaration shall be made within 3 months of completion of 1 year from the date of issue of license in Form 25D or from the date of submission of last self-declaration, as the case may be, and in the event of non-submission of such self-declaration within the time mentioned in the license of the said product shall be suspended temporarily, and if the licensee fail to submit the self-declaration within a further period of 3 months, the license of the said product shall be deemed to have been cancelled. अब यहाँ आप ये समझिए, थोड़ा सेंटेंस लंबा था, मुझे इसलिए लंबा पढ़ना पड़ा। आप अपनी किताब में एक बार फिर और पढ़िएगा तो आपको पूरी तरह से बात समझ में आएगी। और इस सिर्फ ये कहा जा रहा है, आपको छूट तो दी गई है कि नहीं रिन्यूअल नहीं होगा, रिन्यूअल में आपको सारी वो प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताई गई है कि आपको ये सब चीज़ टाइम बाउंड करनी है। और वो टाइम क्या है कि वेन एवर द थिंग्स आर गोइंग टू बी whenever, see the ringtone, when you are easy there will be no tone, when you will be busy there will be phone, right? So it happens every time. Just bear with me. So sorry. Now it happens. Today when I was in the class of the MD first year at BHU, there was a phone. When there was a synopsis review committee was on, and when my to the candidate to whom I am supervisor, when she was presenting, there was a phone. The rest there was no phone. So it happens when you are busy, then there will be a phone. Anyhow, so it is something cosmic plan. Now I am talking about the scenario. Yes, everyone is saying it is industry family, but it is not so industry family, it is time bound. Simply, once license has been issued, then the next year, if it today is suppose it is the 26th August 2023, if your license has been issued on the 26th August 2022, then this 26th August 2023, it is supposed that you should be submitting the self-declaration to the government. Not today, even 3 months prior. Suppose if you are not able to do it the 3 months prior, means you can do it from the June, July, August. You can for the next 1 year, your continuation of your license. But suppose you failed, then also government is giving you very generously 3 months more time. Within next 3 months, you have to submit the self-declaration that all the provisions on basis of which you have gained the license to prepare the Ayurvedic medicines, that is pleased to be continued. That will be considered, and then it will be notified on the date when you are submitting the self-declaration. After the submission, when it has been approved, like you are submitting the income tax assessment per financial year, and today was the news that the out of 6 crore, 6 lakh people are not getting refund of their income tax because they have not verified. It is not fault of the Department of the Income Tax, but it is fault of the department, all the individual persons who are not verifying it on the e-system. If they will verify, their refunds will be there. In the same way here, it is the time given by the government to you. If you have the licensing of that period, then prior 3 months, as we are submitting to the income tax, that last we can submit it to the June, May, and the last date is the 31st July of the every year. In the same way here, the 3 months prior you can submit for your the word is not renewal, that word is the continuation, the perpetual. And if it is there, then if you failed, then next 3 months is permissible. But if due to any reason you fail after the next 3 months, license is cancelled. So be aware, be serious, and then do everything in that way. Your license should not be
cancelled. Then rule 156A, and it is again the duration of the loan license. Dear friends, I do believe that you are understanding what is the difference between the license and the loan license, because since all the 3-4 sessions which we are continuing from rule 151, we are discussing it repeatedly. Again today I am repeating it. What is the license? Where everything is yours. Premises is yours, land is in your name, GMP certificate is in your name. Then you are manufacturing the medicines, either the classical or the patent or the proprietary, whatever the scope of the market you have, now you have created for you. That is the license. And loan license means nothing you have except the formulation, formulation. And that formulation also just in the way that you have created a formulation. That is the way of the proprietary and the patent, or a classical medicine too under the section 3H or under the section 3A respectively. Section 3A for the classical, section 3H for the proprietary medicines. In two way, if you are willing to proceed, you have a formula. You discovered a formula from the Ras Yog Sagar. No one is making that. Or you have just discovered a formula from the Bharat Bhaisaj Ratnakar or the Yoga Ratnakar or the any classical books that is not in the market, but it is the classical. If it is notified into the schedule first of the Drug and Cosmetic Act, those authoritative textbooks, fine, you can prepare the classical medicines also on the loan license. And certainly the proprietary medicines where you are framing some ingredients working on the same line, the pharmacological actions same, and you are creating a new dosage form or the dosage form which is already given in the Ayurvedic classics. Then remember, you have to follow rule 158. Today we are discussing rule 156. Surely within 2-3 Monday we will come to the rule 158, and that will be really very interesting. See here today on the synopsis review committee, there was many questions by the learned professors that whether there is a need of toxicity of this particular plant which is already used into the Ayurvedic materia medica since thousands of years, or what about the new formulations, many things like that. So the answer is lying in the rule 158 of the drug rule 1945. If you have that capacity, that you have developed a formulation like Leaf 52 or like Livomine or like Leaf Sip, anything, anywhere, Ojas, Tejas, whatsoever thing you can, but you don't have land, I mean you don't have a manufacturing unit. In one word, you don't have a manufacturing unit, but you don't want to disclose that particular formula. You want to keep that proportion formula of Ayurvedic medicines with your name only. Then certainly you have to take loan license with a mutual understanding of the licensee, already licensee, and there will be just a market relationship. That fellow will prepare your medicine and that will be marketed by the your company of by the name of your company, not by the manufacturer company. Suppose मैं एक कंपनी का नाम ले लूँ कि सपोज मैंने एक कंपनी का नाम ले लिया सिद्धार्थ फार्मास्यूटिकल्स, और सिद्धार्थ फार्मास्यूटिकल के पास पूरा लाइसेंस है, सब कुछ है, उनके पास जीएमपी सर्टिफिकेट है, उनके पास लेबर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास पॉल्यूशन बोर्ड का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। लेकिन एक नया फार्मूला लेकर के उनके साथ कोई आया जिसके पास ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास फार्मूला है जो कि वो बिलीव करता है कि नहीं उसके ये काम करेगा, फाइन। तो सपोज देयर इज ए वैशाली फार्मेसी डिवीज़न, कुछ भी नाम आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। तो जो ये सिद्धार्थ फार्मास्यूटिकल लोन लाइसेंस जो वैशाली फार्मेसी को मिला हुआ है, उसकी जो लेबल लगेगी वो सिद्धार्थ फार्मास्यूटिकल की नहीं लगेगी। उसकी जो दवा की जब मार्केट से बाहर जाएगी तो उसका लेबल वैशाली फार्मेसीज जाएगी। ये क्लियर होना चाहिए।
आप खाली वो जो आपका लाइसेंसी है जिसके यहाँ आप दवा बनवा रहे हैं उसको आप अपने बिजनेस टर्म पर, बिजनेस डील पर उसको पेमेंट कर देंगे या जो भी करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई दवा तो मेरे नाम से ही बनेगी क्योंकि लाइसेंस मुझे मिला है। मार्केट आप करो क्योंकि आपके पास एस्टेब्लिश मार्केट है, आपके ऑलरेडी आपके पास डीलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, रिटेलर्स हैं, आपके पास एमआर हैं और आपकी दवा को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी दवा बनाओ, ये हमारा फार्मूलेशन है जो कि एक हम कॉस्मेटिकल डिवीजन में एक ऐसी क्रीम बना रहे हैं जो कि लगाने से बहुत ग्लो होगा और दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। तो उस पर लोन लाइसेंस वैशाली फार्मेसीज ने तो ले लिया, लेकिन अब उसके पास बनाने का नहीं है। तो मान लीजिए कि सिद्धार्थ फार्मास्यूटिकल पहले से ही बना रही है, उसके पास अपना मार्केट है, तो ये वैशाली फार्मेसी बनाएगी और बनाने के बाद एक बिजनेस डील कर सकती है कि मार्केटिंग भी आप ही करो, क्योंकि वैशाली फार्मेसीज के पास मार्केटिंग की चेन नहीं है, तो वो उसको वहाँ पर मार्केट करने को दे सकता है। और जब मार्केट करने को देगा वहाँ पर, तो सर्टेनली आप बिजनेस डील आपके ऊपर है। जैसा भी बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में होता है, ढेर सारे रिक्विजिशंस होते हैं। 300 करोड़ में केस किंग खरीद लिया इमामी ने जुनेजा से। एक ब्रांड की कीमत 300 करोड़ नहीं, 300 करोड़ का उसका बिजनेस था इस्टेब्लिश जब खरीदा, लेकिन उसको चुकाया 1500 करोड़ रुपए, 5 गुना ये ब्रांड की वैल्यू होती है। अब आप देख लीजिए, जिस समय इमामी ने केस किंग को खरीदा उसकी मार्केट सिर्फ 300 करोड़ रुपीस थी, लेकिन जुनेजा ने उसको बेचा 1500 करोड़ रुपीस में। तो ये स्ट्रेटजी है, और यही आयुर्वेद के स्कॉलर्स जो आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, ये आपको इस लेवल पर जा कर के सोचना है, तब जा कर के आप कहीं कुछ अच्छा शेयर ले पाएंगे। आज आयुर्वेद का बिजनेस अगर 1,20,000 करोड़ रुपए का है, तो आप उसमें ये देखिए कि कितने लोग वो हैं जो कि आयुर्वेद के यूनिट पर काम कर रहे हैं और उनको इसका बिजनेस मिल रहा है। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट। So the duration of the loan license will be the same in the same pattern as the license. I'm repeatedly defining the license and the loan license. If you have any idea, you can go and deal with the already licensee and you may be in the market and flourish. So what the rule 156A is saying, a loan license issued in form 25E shall remain valid perpetually. अनंत काल तक ये भी है, प्रोवाइडेड दैट द licensee shall submit a self declaration of adherence to the condition of license and the provisions of the Drug and Cosmetic Act and the rules made thereunder every year from the date of issue of license in the form 25E or from the date of submission of the last self declaration as the case may be. आगे ये क्या पढ़ते हैं, वही पुराना लंबा सा पढ़ना है, और आप भी इसी के साथ पढ़ते जाइए, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि रूल रेगुलेशन की जब भी हम लोग आएंगे और बात करेंगे उसमें किताब खोल के साथ बैठना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच सेल्फ डिक्लेरेशन शैल बी मेड विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस इन फॉर्म 25B, सेम जैसा कि लाइसेंस के लिए, और फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लास्ट सेल्फ डिक्लेरेशन as the case may be, and in the event of non-submission of such self-declaration within the time mentioned in the license of the said product shall be suspended temporarily, and if the license failed to submit the self-declaration within a further period of 3 months, the license of the said product shall be deemed to have been cancelled. अब एक ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पर बनता है, पूछा जाए अगर आपसे, मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो या आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी बनती है लाइसेंसी के लिए चाहे लोन लाइसेंसी के लिए? अगर वो सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देता है तो किस पीरियड तक उसका लाइसेंस वैलिड रहेगा और किस पीरियड तक सस्पेंडेड रहेगा और कब वो कैंसिल हो जाएगा? इसको सोचिए। ये एक अच्छा MCQ है आने वाले इम्तहान के लिए, क्योंकि ये रूल भी नया ही आया है, 2021 में आया है। इसके पहले तो रिन्यूअल हुआ करता था। तो इसको देखिए, सोचिए। और अब आप ये तो अभी मैं ऑप्शन दूँ आपको, 3 महीने की छूट तो पहले है टोटल डेट इशू होने से, फिर उसके बाद 3 महीने तक, उस 3 महीने तक आप नहीं किए तो सस्पेंशन,
और उसके अगले 3 महीने तक नहीं दिए तो कैंसिलेशन। तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा या लोन लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा अगर फ्रॉम द प्रीवियस डेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन अगले 6 महीने तक आपने नहीं प्रोसीजर्स को पूरा किया तो। और टेम्पोरली सस्पेंशन रहेगा 3 महीने के लिए, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द लाइसेंस और द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द सेल्फ डिक्लेरेशन। तो रूल 156 ए और रूल 156 तक ही आज रोकते हैं। फिर चलिए एक आज और कवर कर लेते हैं क्योंकि आधा घंटा तो आपके साथ रहना ही है और 5-7 मिनट अभी बाकी है, तो रूल 156 बी भी लेते हैं। और ये है, फिर से अपनी किताब को देखिए कि ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जीएमपी तो सबको पता है कि जीएमपी क्या है, नहीं पता है तो जान लीजिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। तो आधे लोग टिक करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर पर और आधे लोग टिक करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर। तो सही ऑप्शन यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। शेड्यूल टी में एसयू ड्रग्स का है, ये कहते हैं कि ए सर्टिफिकेट इशूड इन द फॉर्म 26E1 शैल रिमेन वैलिड अनलेस इट इज कैंसिल्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी subject to deposit of a certificate retention fee of ₹1,000 before the expiry of a period of every succeeding 5 years from the date of its issue। अब ये समझने की कोशिश करें, जो जीएमपी है, जो एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, उसका जो आपका रिटेंशन पीरियड यहाँ पर नाम दिया गया, शब्दों में ही सारी माया है। तो ड्यूरेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इज हियर फॉर द जीएमपी इज द 5 year, वेयर एज द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज जस्ट फॉर 1 year, एंड दे आर सेइंग द परपेचुअली कि अनंत काल तक। लेकिन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन हर साल देना है, मगर जीएमपी में आपको हर 5वें साल देना है। यहाँ आपको पैसे नहीं देने हैं, यहाँ आपको पैसे भी देने हैं। और इस 1000 रुपये पर भी ढेर सारे ऐसे आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लोग हैं। आज ही एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, शायद आप में से कुछ उस पर मेंबर भी होंगे, क्वालिटी सेफ्टी इफिकेसीज ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन। देखिए आज सवेरे से वहाँ पर डॉक्टर हिमांशु बरुआ ने, जो कि शिलांग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक डाबर के प्रोडक्ट को पोस्ट किया और कहा कि इसकी सेल्फ लाइफ पीरियड तो 2 year और कुछ डेज लिखी हुई है, ये किस गाइडलाइन पर है। फिर हमारा वो ग्रुप आज बहुत ही शानदार ग्रुप है, उसमें सभी लोग हैं, उसमें जो भी जिसका भी कोई से है वहाँ पर है, चाहे वो टॉप एमडी हो किसी कंपनी का, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, वो भी है, और एक पीजी स्कॉलर भी है, और प्रोफेसर भी है, रेगुलेटर भी है, इवन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेटर भी उस ग्रुप में हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो देखिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर शिलांग ने क्वेश्चन उठाया स्वर्ण गुगलू की सेल्फ लाइफ पीरियड पे, उसको आंसर कर रहे हैं जनरल मैनेजर डाबर, उनको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर JLN शास्त्री, फॉर्मर एडवाइज़र और द फॉर्मर, जिन्होंने की इंडस्ट्री फैमिली में बात कर रहा हूँ, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पर और पार्ट ले रहे हैं इमामी के CEO। तो ये सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, और उसमें फिर एकेडमिया तो है ही है। तो ये एक डिबेटेबल चीज़ें होती हैं और जिन पर बहुत अच्छा डिबेट करनी चाहिए अगर हम आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक एडवांस स्टेज में ले जा करके ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। और बहुत अच्छा डिस्कशन वहाँ चल रहा है इस समय, पिछले 3-4 घंटों से चल रहा है, और मैं अभी उसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपके डे के रूटीन में हूँ डिपार्टमेंट के। शाम तक मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, और वैसे मुझे अब उसमें कुछ करने को बचा नहीं है क्योंकि डॉक्टर कटियार, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद सर और डॉक्टर CK कटियार और डॉक्टर JLN शास्त्री जब मोर्चा संभाले हुए हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस से, उन लोगों का इस फील्ड में एक्सपीरियंस 40 ईयर का है, तो दे आर एक्सप्लेनिंग एंड आई अप्रिशिएट डॉक्टर हिमांशु बरुआ हु इज़ द यस ही इज़ मुझे कहने में अच्छा लगेगा कि उनकी MD मेरे साथ ही हुई है और इसी डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट हैं वो, और उन्होंने एक सीरीज़ हमने चलाई थी जिस पर कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कि
उस हमारी 4 थीसिस की सीरीज़ में ही डॉक्टर हिमांशु बरुआ वॉज द फर्स्ट। एंड ये अच्छा लगता है मुझे कि जब हमारी ट्रेनिंग के हमारे साथ के लोग ऐसे क्वेश्चंस को उठाते हैं और उनका माइंडसेट ये हो जाता है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ तो उनका माइंडसेट ये हो जाता है कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एसेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं और तब उस पर हाँ या ना करते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। Certainly you are saying continuously and you have given that you all are once again feeling that you are in the class of the Banaras Hindu University when we were discussing on every Friday morning time rule the regulation. So that Swan Gugulu, which is Swan Gugulu Kalp, which is under the discussion today, the self-life period is going on. There is no conclusion at all because that is the proprietary medicine. And for the proprietary medicine, Rule 161B of the drug rule is saying that will be submitted by the concerned company. There is no fixed rule by the Government of India, I mean Ministry of Ayush. The 12th August 2016 regulation is not binding on any proprietary Ayurvedic products. The company has to generate the data for that. Yes, they may take the lead if it is the bati with the only with the cast aushadhi, this much, that is the 2 year. If it is the with the some metallic preparations, if it is the herbomineral, then the 5 year. So that may provide a lead, but the final thing, company has to prepare that data of the self life period, सविधता अवधि। और वहीं पर हमारे मुल्तानी के हैं डॉक्टर हिमांशु जी, वो कह रहे हैं कि ये तो ड्रॉबैक है, हर कंपनी कहाँ से लाएगी 6 करोड़ रुपए की वो सबका सेल्फ लाइफ पीरियड जमा करे। भाई 6 करोड़ रुपया एक दिन के लिए थोड़े कहा जा रहा है। आप डिटेल पर जाइए ना, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज इतनी सारी हैं, 28 हैं पूरी कंट्री में, उनसे आप सेल्फ लाइफ स्टडी कराइए। और लेकिन सेल्फ लाइफ स्टडी आप अपनी कंपनी का जो भी आप प्रोप्राइटरी मेडिसिन बना रहे हैं उनका बना करके दीजिए। तो एक अच्छा डिस्कशन चल रहा है। और अब मैं लास्ट फ्रेज पढ़ता हूँ 156B का। वो ये कहता है कि इफ़ द लाइसेंसी फेल टू पे सर्टिफिकेट रिटेंशन फी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एज रिफर्ड to in the sub rule 1, he shall be liable to pay certificate retention fee along with a late fee calculated at the rate of 2% of the certificate retention fee for every month or part thereof into the 6th month, and in the event of non-payment of such fee, the certificate shall be deemed to have been cancelled. क्या बात है, फीस है 1000 रुपये, पेनाल्टी लग रही है 2%। तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को आने? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, और यही प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे अपनी बात रखनी है। आप MSME की बात तो करते हैं तो ठीक है, वो बहुत कुटीर उद्योग है, उसके लिए 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, मान गया मैं 1000 रुपये ज़्यादा है। लेकिन जिनका बिजनेस 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उनके लिए भी 1000 और उनके लिए भी 2%। लेकिन नहीं, ग्रेजुएट इज द ग्रेजुएट, whether the MBBS from AIIMS or the BTech from the IIT Mumbai or the BA from the any degree college. Before the law, everyone is just a graduate and lab and have the eligibility to appear in the Union Public Service Commission CSE, Civil Services Examination. All are graduate. Fine, I have no problem with this. That is the equality. लेकिन अब प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर जिनका बिजनेस 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, वो तो इन पर फेल ही नहीं होंगी। वो तो उनका एक अलग डिवीजन ही होता है जो खाली इन्हीं चीज़ों को देखता रहता है कि किसका लाइसेंस कहाँ अपेयर हो रहा है, GMP सर्टिफिकेट कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है। दे हैव देयर मैन पावर, देयर रिसोर्सेज एंड दे आर डीलिंग विथ ऑल दीज रेगुलेशंस वेरी सिस्टमेटिकली। प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ वन मैन आर्मी है, एक ही आदमी है, वो बना भी रहा है, बेच भी रहा है, मार्केट भी कर रहा है, प्रिस्क्राइब भी कर रहा है क्योंकि डॉक्टर है, वहाँ प्रॉब्लम है कि वो कुछ भूल गया, क्या किया। तो ठीक है, आपने 2% का पेनल्टी लगाया है, एवरी मंथ के हिसाब से लगाया है, 6 महीने का समय दिया है, फाइन, और उसके बाद भी नहीं करेगा तो GMP सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।
We have covered 156 duration of the license, then we have covered 156A, that is the duration of the loan license, and we covered 156B, that is the duration of certificates of good manufacturing practices for Ayurvedic Siddha Unani drug manufacturing unit. And on the next Monday we will start 156C, that is the inspection for the grant of license and the verification of compliance. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले मंडे को, और तब तक के लिए गुनिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए, रूल रेगुलेशन समझ लेंगे, आपकी एक अलग पहचान होगी, लोग आपको अलग से ढूंढेंगे और आपकी वैल्यू होगी आपकी एकेडमिक फील्ड में। आज भी हाँ, मैं रेफरेंस दूंगा कि आज जो हमारे यहाँ दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग थे और ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे जो रूल 158 में, तो मैंने उनके सामने बहुत हम्बली सबमिट किया कि सर आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा अगर आप रूल 158 पढ़ लें, और मैंने उसकी PDF बना के उनको भेज दी। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, और रसशास्त्र और वैशेष कल्पना द्रव्यगुण के स्कॉलर्स को तो और ज़्यादा। अगर काय चिकित्सा शल्य भी इसको समझने की कोशिश करता है तो उसको प्रैक्टिस में फ़ायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना है। चाहिए इनको पढ़िए, समझिए, और अगले सोमवार तक के लिए नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे से प्रगति करें। धन्यवाद।